Hello friends. So we have completed 13 lessons of marketing 1, marketing management 1, and now this is lesson 14. In this pricing strategy we will learn. Pricing strategy क्या है? जो मार्केटिंग मिक्स के 4 पीस हैं उसमें एक प्राइस है सेकंड वन एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विच गिव्स रेवेन्यू टू द कंपनी कंपनी को जो भी इसने एफर्ट लगाया मेन जो उसका टारगेट है वो प्राइस से ही मिलता है सेल्स रेवेन्यू हो प्रॉफिट हो जो भी हो तो हम आज इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे The only component of marketing mix that generates returns is called price. However, others only generate cost. This is very interesting. All the four P's you have seen. जिस इसमें आप देखो फर्स्ट पी प्रोडक्ट सेकंड इज प्राइस थर्ड इज प्रमोशन फोर्थ इज प्लेस तो इन दैट एक्सेप्ट दिस प्राइस अदर थ्री स्ट्रेटजीज व्हाट यू आर डूइंग यू आर जस्ट इन्वेस्टिंग आप सिर्फ खर्च कर रहे हो प्रोडक्ट को बनाने में प्रमोशन करने में विजिबिलिटी के लिए या फिर प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए नेटवर्क बनाने में दिस ऑल दिस आर जस्ट टेकिंग मनी फ्रॉम यू वेर एज द प्राइस ओनली इज गिविंग यू मनी तो अब दो निगाह है दो नजरें हैं मैन्युफैक्चरर की नजर में क्या है व्हाट इज प्राइस वट एवर द बायर इज पेइंग टू द सेलर एंड कस्टमर की नजर में क्या है whatever amount he or she is paying for the service or the product he or she is getting है ना जो मुझे मिला सर्विस जो मुझे मिला प्रोडक्ट उसके लिए जो हम पेमेंट करते हैं दैट इज प्राइस तो व्हाट इज प्राइस इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स amount received by the seller divided by number of goods or quantity of goods and services received by the buyer so per unit what payment the buyer is giving to seller. So in other words, very technically it is explained here, very good definition. The method used to convert the worth of a product or unit of service into quantitative form at a given time for customer is called pricing. जो मेथड यूटिलाइज करते हैं ना इस प्रोडक्ट के वर्थ को या सर्विस के वर्थ को क्वांटिटेटिव फॉर्म में बदलने के लिए उसी को कहते हैं प्राइस हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है प्राइसिंग करने का मतलब क्या है देयर ऑलवेज एग्जिस्ट अ मोटिव बिहाइंड प्राइसिंग ए प्रोडक्ट और सर्विस मे बी रेवेन्यू सर्वाइवल और एनी अदर competitive advantage following some of the pricing objectives आप देखोगे sometimes what happen you are entering in a market new entrant sometimes your product is clicked hit you are in growth stage sometimes your product has reached at the maturity level sometimes lot of companies lot of competitors are there sometimes lot of I mean, unstable economic conditions are coming so in that situation what pricing your company is keeping that is objective so in this what is that profit maximizer pehla first objective is that whatever you have invested in the cost in manufacturing of the product you want profit ultimately what company wants profit second is facing competition what I told you lot of competitors are there how to compete with them capturing the market हमें market share को achieve करना है suppose it is 25% I want to become leader to attain and for that I have to attain that market share of 40% तो उसके लिए प्राइस हो सकता है घटाना पड़े डिस्काउंट देना पड़े कुछ भी करना पड़ सकता है प्रॉफिट मार्जिन ऑफ मिडिल मैन दिस नेटवर्क यू आर डेवलपिंग नो दैट this place that dealers are there agents are there wholesalers are there these middlemen for them also you have to give the margin and they should be satisfied if they are not happy you cannot sell your product सर्वाइवल के लिए कभी कभी क्या होता है कि रिसेशन आ गए या उस प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है उसका कुछ सब्सटीट्यूट आ गया तो सर्वाइवल के लिए आप क्या प्राइस रखोगे लेकिन हर समय प्राइस घटाना बढ़ाना इज इट करेक्ट नो
it gives very bad brand image to the customers. तो प्राइस स्टेबिलिटी भी चाहिए, ये भी एक ऑब्जेक्टिव होती है. अचीविंग ए टारगेट रिटर्न, और हम किसी सेल को अचीव करना चाहते हैं. समटाइम्स फॉर दैट आल्सो कंपनी ऑफर द डिस्काउंट्स और समथिंग. फर्म्स वेल-बीइंग इन द लॉन्ग रन. तो you have to keep price so that the people are happy with your product. जो उसे सर्विसेज मिल रही है उसके लिए वो जस्टिफाइड होना चाहिए, तभी वो लॉन्ग रन के लिए आपके साथ अटैच रहेंगे. मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यू आर यूटिलाइजिंग लॉट ऑफ रिसोर्सेज, तो उसका खर्चा तो निकलना चाहिए ना. तो दोज थिंग्स यू हैव टू ऐड. प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप, देन यू हैव मेंटेनिंग, सपोज प्रीमियम आइटम इज देयर. मर्सिडीज कार, वो कम पैसा नहीं रखेगा, उसका कॉस्ट अपने लेवल का ही रखेगा, है ना. BMW, Mercedes. Then perfume, classic example of perfume. Very good perfume is there, but you keep it in a very cheap type of bottle, huh? And sell it. Nobody will buy it. If you put it, the perfume, in a very attractive this bottle, and then keep some attractive price, also very high price, premium item, something like that, then you see that the response will be very good. So these are the objective factors influencing pricing decision. क्या कारण होते हैं हमारे प्राइसिंग के डिसीजन में चेंज आने का? तो उसका कुछ इंटरनल फैक्टर्स है, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स है. व्हाट आर द इंटरनल फैक्टर्स? मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव, मार्केटिंग मिक्स स्ट्रेटजी, कॉस्ट, ऑर्गेनाइजेशनल कंसिडरेशंस. मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज दैट? यू वांट टू अटेन सम मार्केट शेयर, you want to reach in such a place where your product is not visible. You want to attain you want to enter in a new market. This also can be marketing objective. Marketing mix strategy, that all 4 P's. For that, whatever strategy you are making, based on that also, that you have to keep the price up and down. Cost, of course, cost is the major factor. जितना कॉस्ट उससे कम में तो नहीं बेचेंगे हम. और ऑर्गेनाइजेशन कंसिडरेशन, उनका अपना प्रिंसिपल कुछ है, जैसे कुछ प्रोडक्ट है ना बहुत हाई प्रीमियम रेंज के हैं, कुछ है लो बजट इकोनॉमिक प्रोडक्ट. सो एंड some principles are also there of the company. Based on that also they are fixing the prices. So, and the external factors, what are those? You have to compete in the market, so competitor ka price, of course it affects. Then economic conditions, I told you that recession, if lot of recession is there, people are earning less, interest rate is going down, क्या होगा? आप प्राइस बढ़ाओगे तो बिकेगा नहीं. Then government is also a very major factor. Sometimes they increase the GST, sometimes they reduce the GST. Some government will promote some particular product, agriculture product, fertilizers. Sometimes they discourage that imports. So all these things happen, and this affects your pricing. प्रोसीजर क्या है? प्राइसिंग प्रोसीजर, सबसे पहले क्या करते हैं? टारगेट मार्केट, हम पहले उसको देखते हैं. किस मार्केट में हमें बेचना है? जो मार्केट सेगमेंट आपने सेलेक्ट किया है, उसका क्या इनकम लेवल है, वो किस लेवल तक कौन सा प्रोडक्ट को खरीदने में सक्षम है. Not only सक्षम, not only that capacity, but how much they are ready to pay for a particular service or product. है ना, हमारे पास लाखों रुपए हैं, लेकिन मैं इस सर्विस के लिए जूते के पॉलिश अगर कराने हैं ना, तो इस पॉलिश के लिए मैं मैक्सिमम 100 रुपया ही खर्च करूंगा, है ना. तो दैट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड. डिटरमाइनिंग डिमांड, तो लेवल ऑफ डिमांड क्या है ना. अगर आपको पता है कि डिमांड इसका बहुत तेजी से बढ़ना है, तो आपको प्राइस भी उसी अनुसार रखना है. डिमांड बढ़ रहा है और आप प्राइस को घटा रहे हो, कोई मतलब नहीं है ना. यू विल इनकर लॉसेस. जो लॉस है ना, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक्चुअली. पहले भी मैंने एग्जांपल दिया
कि people are ready to pay 120 rupees and you are fixing the price 100 rupees, and suppose 1 lakh quantity you have sold, so 20 lakh, 20 rupees into 1 lakh, that is 20 lakh, you have lost money. Perfume, high range, high cost products are more in demand, isn't it? So that way you have to fix the price. Estimating cost, overheads, fixed and variable, है ना? So this middleman expenses are there. Then manpower, how many people you are keeping, that is overheads. ये भी आपके प्राइस में ऐड होता है ना? And then variable is per quantity how much you are spending. Just like salesman incentive, dealers incentive, employees incentives. तो जितना ज़्यादा बिकेगा उतना ज़्यादा वेरिएबल कॉस्ट खर्चा होगा. Analyzing competitors' pricing, ये already we have discussed. Selecting pricing method, कॉस्ट बेस करना है. कॉस्ट बेस मतलब जब जितना आपने खर्च किया बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्लस मार्जिन, देन योर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्लस मार्जिन इज योर MRP या मार्कअप प्राइस. बट if you have to think about the competitor also, what is the price of competitors, they are already selling at this price, what should be your price, so that is also a strategy. कस्टमर डिमांड बेस्ड, अगर आप जानते हो कस्टमर का डिमांड बहुत बढ़ने वाला है तो काफ़ी अच्छा रखोगे प्राइस. अगर आप जानते हो कि प्राइस हमारे प्रोडक्ट के लिए इतना नहीं बढ़ेगा जब तक कि मैं प्राइस इतना नहीं रखूंगा, तो कीपिंग हाई प्राइस इज नॉट जस्टिफाइड. देन सेलेक्टिंग द फाइनल प्राइस, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, कंपनीज प्राइसिंग पॉलिसी, इम्पैक्ट ऑफ प्राइस ऑन अदर पार्टीज. Psychological, already I told you that people want to buy premium item at a higher cost only. अब Mercedes का दाम अगर रख तो प्राइस 10 लाख रुपया, nobody will buy Mercedes then. They will think that it is not original Mercedes. If you give me Mercedes in 1 crore or 60 lakhs, 70 lakhs, then only I will buy. And I will say then I am proud owner of Mercedes car. Company की pricing policy, already I told you that this is their company's principle also, what up to what price they should keep, or some they have got the boundary also. Impact of price on other parties, see if you keep high price then it may affect the, maybe that you are supplying some item to a different bigger company and it will add the value to that final product, and then because of that the other party means the manufacturer of some suppose automobile, and we are supplying some part of that. And if you keep the high price, what will happen? They will be thinking that because of this product, this item, our final automobile cost is increasing. So that also you have to think, then only you can fix the price. What is price sensitivity? अगर आपके प्रोडक्ट का यूनिक वैल्यू है, जैसे बॉश का पंप, FI पंप, only Bosch is making, nobody else, so they are having monopoly almost. तो यूनिक वैल्यू जो इफेक्ट है ना, उसको आप इनकैश कर सकते हो, बट डूइंग टू मच ऑफ दैट, इफ यू एक्सप्लॉइट द कस्टमर, तो उसका उल्टा असर भी हो सकता है. Substitute awareness effect, अगर people are not knowing about the substitute, then also you can keep the price, it will not have much sensitivity. Difficult comparison effect, अगर आप ऐसा प्रोडक्ट बनाते हो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और इसमें ज़्यादा फीचर्स हैं, सम इंजीनियरिंग प्रोडक्ट इज है एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कंपेयर विद द अदर्स. अगर उसमें 10 फीचर्स हैं तो दूसरा जो कंपटीटर है वो हो सकता है उसमें से कुछ चीज़ें नहीं देता है. जैसे कि आप घर का आप नक्शा बनाते हो, डिजाइन में आर्किटेक्ट के पास जाते हो, वो कुछ चार्ज करता है, तो आप उसमें एक आर्किटेक्ट से दूसरे आर्किटेक्ट से कैसे कंपेयर करोगे? है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ना. सो मेनी थिंग्स आर देयर एंड इट विल बी फेल्ट ओनली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दैट प्रोजेक्ट, है ना.
टोटल एक्सपेंडिचर इफेक्ट, अगर कोई प्रोडक्ट है, उसका पूरा कंप्लीट एक प्रोडक्ट है, उसमें से एक आइटम है ना, उसका वैल्यू पूरे प्रोडक्ट की अपेक्षा बहुत कम है, तब भी वो सेंसिटिविटी कम होता है। मैं मान लो एक बड़ी कंपनी हूँ और उसमें एक मशीन में बनाता हूँ, उसका एक आइटम आप सप्लाई करते हो, लेकिन मशीन का दाम 1 करोड़ रुपया है, आप वो आइटम 10,000 रुपये में देते हो मेरे को। अगर उसको आप 11,000 भी कर दोगे ना, तो आई विल नॉट ऑब्जेक्ट, है ना, तो सेंसिटिविटी कम हुआ ना। मुझे उसके बिना काम नहीं चलेगा, इसलिए मैं तुमसे तो लूंगा ही लूंगा। एंड बेनिफिट इफेक्ट, अगर जो प्रोडक्ट आपने लिया और उसको यूटिलाइज करने के बाद उससे कुछ आउटपुट निकालते हैं और उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तब भी आपके मशीन या आपका जो आपने जो हमसे प्रोडक्ट लिया उसका प्राइस का इफेक्ट कम होगा, हाँ, एंड इफेक्ट में, मतलब जो लास्ट में जो आपको वैल्यू मिल रहा है वो ज़्यादा मिल रहा है ना। 1 लाख का कोई आपने मशीन लिया और आपसे जो आइटम्स निकालते हो वो हर दिन सपोज 10,000 का आप उसका आउटपुट इससे मिल रहा है, तो 10 दिन में तो 1 लाख रुपया मिल गया आप, हाँ, तो आप उसमें भी थोड़ा कम सेंसिटिव हो गए। 1,10,000 भी अगर हम प्राइस कर देंगे तो आप सोचे चलो यार 10 दिन में निकला, 11 दिन में होगा, उसका कॉस्ट निकलेगा। शेयर्ड कॉस्ट इफेक्ट, अगर पार्टनर्स हो, कोई बड़ा आइटम आप खरीद रहे हो, तो भी उसका प्राइस का इफेक्ट कम होता है, क्योंकि उसको शेयर्ड है, आप पर बहुत कम उसका असर होगा। संक इन्वेस्टमेंट इफेक्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ अदर वन, अगर कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जिसके बिना सप्लाई के वो जो है ना आइटम बनता ही नहीं, कंप्लीट ही नहीं होता, हाँ, तो दैट आइटम व्हाट यू आर सप्लाइंग टू देम, लाइक बॉश पंप, उसके बिना हमारा कार कंप्लीट ही नहीं होगा, तो उसका प्राइस अगर थोड़ा सा बढ़ा देगा तब भी हमें कुछ उसका असर नहीं। प्राइस क्वालिटी इफेक्ट, हम अपने कंपनी का बहुत ही ऐसा नाम रखते हैं कि क्वालिटी सेंसिटिव है। एप्पल का फ़ोन है, आईफोन, तो क्वालिटी में, क्रिएटिविटी में उसका कोई जवाब नहीं, एंड दैट दे आर मेंटेनिंग, like that John Deere tractor. John Deere tractor, when it had come in 1998 or something, 1999. So that was a quality product. This cost was high, very high cost. In tractor segment, it was the highest cost. But it maintained that वो quality आपको चाहिए तो आपको वही price होगा. And you will feel also that you are proud owner of that. Inventory effect, अगर ये perishable है, ये ऐसा चीज़ खराब हो जाएगा, तो प्राइस सेंसिटिव होगा इसमें, मतलब अगर आप ज़्यादा प्राइस बढ़ा कर रखोगे तो हो सकता है नहीं बिके, तो उसमें आप प्राइस को घटाना पड़ेगा या मार्केट के अनुसार चलना पड़ेगा। अब क्या है एस्टिमेटिंग डिमांड कर्व, अब कैसे जब आप प्राइसिंग कर लेते हो ना, प्राइसिंग का मतलब ये है किससे हम फाइनली डिमांड पे आते हैं कि कितना डिमांड, हमने प्रोडक्ट को डिजाइन किया और उसका प्रोडक्शन कर लिया, उसका कॉस्ट हमने निकाल लिया, और हमने ये भी स्ट्रेटजी तय कर लिया कि उसमें क्या हम प्रमोशन और प्लेसमेंट करेंगे, कैसे करेंगे। तो हमें पास्ट हिस्ट्री से देखना होगा कि जब कॉस्ट बढ़ाया है तो क्या डिमांड रहा, घटा है तब क्या हुआ, बढ़ा तो क्या हुआ, उस हिसाब से हिस्ट्री को देखते हुए नाउ यू कैन एक्सट्रापोलेट एंड फाइंड आउट द डिमांड फॉर द न्यू फाइनेंशियल ईयर। प्राइस एक्सपेरिमेंट्स चेंज इन सेल्स फ्रॉम डिस्काउंटेड प्राइस टू नॉर्मल प्राइस, आप एक्सपेरिमेंट करते हो, इससे भी पता करते हो कि किसी एरिया में प्राइस को बढ़ा दो, घटा दो और उसका असर देखो, देन ऑल्सो यू कैन फाइंड आउट what will be the demand curve. सर्वे और इंटरव्यूज ऑफ द बायर से आप डायरेक्ट पूछो, इंटरव्यू लो, इससे भी आपको पता चले। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये क्या है, सेंसिटिविटी है जो कि अगर प्राइस बढ़ाते हो तो क्या उसका डिमांड में असर होता है। PED is the reaction in the form of change in quantity demanded with respect to change in price.
देखो ऊपर में क्या है, PED इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर यूनिट परसेंटेज चेंज हुआ प्राइस में तो कितना परसेंटेज चेंज हुआ डिमांड में, दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यूनिट परसेंटेज चेंज करने पे क्या डिमांड पे असर होता है, बढ़ता है घटता है। सिगरेट में क्या होगा, अल्कोहल में क्या होगा, यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। एंड एट द सेम टाइम you can see the change in the this dress clothes, उसका अगर प्राइस बढ़ाते हो तो क्या है ना। So how companies do pricing? Cost based, cost plus pricing, markup price. What does it mean? Cost plus pricing is what? Cost उसमें थोड़ा margin ऐड किया, cost से ज्यादा pricing, और वो that is called markup price, that is written on the product in the wrapper। और देन फुल कॉस्ट प्राइसिंग, जो हमारा खर्च है, जो हमें प्रोड्यूस करने में खर्च हुआ, टोटल कॉस्ट, और जो भी अदर देन दैट व्हाट एवर कॉस्ट आर इन्वॉल्व, वी आर टेकिंग दैट ओनली। अभी इंट्रोडक्टिव स्टेज में है, यू आर टेकिंग ओनली द कॉस्ट। यू वांट टू पेनिट्रेट मार्केट और यू वांट टू enter that new market. Marginal cost pricing, you are keeping some profit, little profit, है ना, cost plus little margin, and then you are doing pricing, that is marginal cost pricing. And you can see that for the increment, whatever the price you have increased, I mean by taking profit, what the effect is there on the demand. तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, आपका फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दो तरह का होता है। फिक्स्ड कॉस्ट क्या है कि वट एवर यू डू सेल और नॉट, यू हैव टू पे। मंथली रेंट है, बिजली है, ये सब आपको तो खर्च करना ही है, मैन पावर जो सैलरी है वो तो देना ही है। तो आप जितना फिक्स्ड कॉस्ट है अगर उसे निकाल लेते हो, मतलब आप ब्रेक इवन पॉइंट आ जाता है। तो जो प्राइस होता है उसमें क्या होता है, एक तो कॉस्ट होता है, उसमें मार्जिन ऐड होता है, और दूसरा होता है वेरिएबल कॉस्ट। जितना ज़्यादा बेचोगे उतना ज़्यादा खर्च होगा पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। तो हमें सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट निकालना है, और जो वेरिएबल कॉस्ट है वो तो आपको मिलता नहीं, तो जो आपका MRP है उसमें से वेरिएबल कॉस्ट को हटा दो और फिक्स्ड कॉस्ट में से उसको डिवाइड कर दो, तो जितना आएगा नंबर्स, दैट इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। उतना मिनिमम क्वांटिटी सेल करने पे फिक्स्ड कॉस्ट आपका निकल जाएगा। टारगेट प्राइसिंग, यू वांट टू अचीव सम प्राइसिंग। आप मान लो कि कुछ 100 रुपया कॉस्ट है मैन्युफैक्चरिंग, you are new to the market, you have kept the price 110 rupees, and slowly you want to achieve that target pricing of 120 or 125, तो that way you can slowly increase the price। so ये भी एक स्ट्रेटजी हो सकता है। या रेट ऑफ रिटर्न प्राइसिंग, आपको इतना रेट ऑफ रिटर्न मिलना चाहिए, जो आपने खर्च किया है तो उसमें आपका इन्वेस्टमेंट है, तो इतना रेट ऑफ रिटर्न मिलना चाहिए, पर यूनिट आपको इतना मिनिमम प्रॉफिट मिलने चाहिए, तभी आपकी वायबिलिटी बनती है। तो ये तरीका है, स्ट्रेटजी है इसका, कॉस्ट बेस्ड। कस्टमर डिमांड बेस्ड, इसमें हम बैकवर्ड एस्टिमेशन करते हैं। पहले ही आप सोच लेते हो कि हमें क्या प्राइस रखनी है, ठीक है, क्या प्राइस रखनी है वो पहले हम सोच लेते हैं, फिर हम प्रॉफिट की ओर आते हैं, ठीक है। पहले क्या किया था, कॉस्ट आई हैड टेकन 100 rupees, देन you have taken your margin, then you have taken some variable costs in promotion and other things in middleman, salesman, etc., something like that. Then you had come to the price. But here what is that? First you are saying that our product is okay and it is liked by all, it is a hit, everyone is liking my product. So what you are deciding? First you are deciding the markup price, 150 rupees, okay. Then you go back in that promotional activity, you are keeping this much, 10 rupees, for middleman 5 rupees, then cost is 100 rupees, the balance 35 rupees your margin. So this is backward estimation. What the traffic can bear pricing, customer demand है ना, इसमें what traffic you can bear, है ना, साबुन, you see how many players are there, how many companies are there, so that also you have to do trial and error.
किस प्राइस में वो कंफर्ट है, किस प्राइस में कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को लाइक करता है। स्कीम्ड बेस्ड प्राइसिंग, customer status believed to go up or opinion leader. Whatever, no, that in the suppose in a new market you have entered, you keep your price at the high level, ठीक है, then slowly you reduce it, then you will come to know at which level the customers are liking your product. जब जहाँ मैक्सिमम रिस्पॉन्स आना शुरू हुआ, सब आपने 150 रहेगा कोई नहीं खरीद रहा है, बहुत कम लोगों ने खरीदा, 140 रहेगा थोड़ा ज़्यादा रिस्पॉन्स है, 130 रहेगा और अच्छा है, एंड देन यू आर कंपेयरिंग विद द कंपिटिटर्स, ठीक है, उनका उतना बिकता मेरा भी इतना बिक रहा है, नाउ इट्स ओके, वी आर गुड कंपिटिटर, देन you stop it. So that is scheme pricing. Penetration based pricing, कहीं नए मार्केट में जाते हैं या बहुत स्टिफ कंपटीशन है तो फिर आपको प्राइस को उसके अनुसार रखना पड़ेगा, कुछ डाउन होना होगा। मार्केट कंपटीटर बेस्ड, मार्केट के अनुसार कंपटीटर के बेस के अनुसार आप कर सकते हो। डिटरमिन्ड बाय ऑब्जर्विंग द कंपटीटर प्राइस इन ए पर्टिकुलर मार्केट, फॉलोड बाय जनरली स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन मेकिंग बेंचमार्क ऑफ बिगर कंपनीज प्रोडक्ट। कुछ कंपनियां जैसे छोटी कंपनियां तो क्या करती है, बड़े कंपनियों का एक मार्केट उसको लीडर मानते हुए उसको बेंचमार्क करते हैं और उसी के आधार पर अपने प्रोडक्ट का प्राइस करते हैं, है ना। जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा का ट्रैक्टर है, देन मारुति कार है, हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट हैं, इनके प्राइस जो है ना, इनके जो प्रोडक्ट रेंज है उसमें ये लीडर्स है, उनके प्राइस को बेंचमार्किंग करते हैं। इवन इन क्लास कंबाइन हार्वेस्टर यू मस्ट हैव सीन दैट other product companies, no, they are just following that. At par with competitors price, below competitors price, above competitors price, competitive bidding, है ना। तो आप कंपटीटर के बराबर रख सकते हो या उससे नीचे रख सकते हो या उससे ऊपर, ये डिपेंड करता है आपका क्या लेवल है, आप किस लेवल में हो। कंपटीटर से ज्यादा आपके प्रोडक्ट को लाइक किया जाता है, आर यू मार्केट लीडर, देन यू हैव टू कीप अबव। अगर आप उससे नीचे हो तो फिर आपको तो प्राइस को डाउन रखना पड़ेगा। अगर सेम आपका रिस्पॉन्स उसके जैसा है तो यू कैन कीप एट पार, है ना। तो पतंजलि प्रोडक्ट एंड लेंसकार्ट, their लेंसकार्ट इज what budget product, you can say economic product, so they are keeping the price and others are doing follow up. Now come to other pricing methods. वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। वैल्यू क्या है, जो प्रोडक्ट आप बनाते हो उसका एक कॉस्ट होता है, जो उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बनाने में जो लागत आई, देन यू आर एडिंग सम प्रॉफिट एंड इट इज बिकमिंग मार्कअप प्राइस। तो मार्कअप प्राइस हो गया प्राइस जो कस्टमर को पे करना है, और कस्टमर उस प्रोडक्ट का क्या वैल्यू देता है, दैट इज द वैल्यू। तो वैल्यू, प्राइस एंड कॉस्ट, देयर आर थ्री थिंग्स। अगर कस्टमर प्रोडक्ट के मार्कअप प्राइस से ज्यादा वैल्यू देता है तो आपको बेचना बहुत आसान है, वो आराम से बिकेगा, पोटेंशियल मार्केट है आपका, और there you can say it is niche marketing. Then अगर वैल्यू इज मोर देन द कॉस्ट बट लेस देन द प्राइस, तो क्या है इसका मतलब, आप प्राइस ज्यादा लेते हो, कस्टमर दे रहा है पेमेंट लेकिन दिल से नहीं दे रहा है, तो क्या है, आप तो प्रॉफिट तो कमाते हो लेकिन कस्टमर को लगता है कि इतना ज्यादा पैसा देना ठीक नहीं है, तो थोड़ा वहां पे मार्केटिंग करने की जरूरत है, अपना वैल्यू एडिशन करने की जरूरत है। प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स आर देयर, in that the customer means students or parents of the student, what they feel that they are paying more, isn't it? Price is greater than cost and cost is greater than value. Customer is giving the least value to your product, even तुम्हारा जो cost है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उससे भी कम है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आपका नया प्रोडक्ट है, न्यू इंट्रेंट हो, customer has not accepted your product till now, it may be in your introductory stage, product life cycle में। Another case is price is equal to the value but greater than cost. कस्टमर जो वैल्यू दे रहा है वो आपके प्राइस के इक्वल दे रहा है, तब भी आप बेच लोगे, लेकिन इसमें थोड़ा कंपटीशन हो सकता है ना। तो अगर कोई दूसरा कंपटीटर खड़ा हो गया, उसने प्राइस कम कर दिया,
यानी वहाँ पे उसमें कस्टमर ने वैल्यू ज़्यादा दिया और उसका प्राइस कम है, तो आपका कस्टमर चेंज हो सकता है. So this is there are 4 ways in what position you are. You can decide the strategy. Affordability based. See, there are some products on which the company or on which the government is giving subsidy. You cannot increase the price just like that, and customers are getting the subsidized rate. Salt है जिस पे आप नहीं ज़्यादा प्राइस बढ़ा सकते. दूसरी बात, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, फर्टिलाइजर्स है, उस पर भी गवर्नमेंट सब्सिडी देती है. सो दैट इज अफोर्डेबल. बेस्ड ऑन दैट यू कैन डू द प्राइसिंग. Prestige based, already we discussed psychological pricing, that customers feel proud of having that product, तो उसका प्राइस आप बढ़ा सकते हो. Market and demand based pricing under pure competition, that already we discussed. जैसा कंपटीशन है, जैसा मार्केट है, उसके अनुसार you have to keep your product price. Second is under monopolistic competition. मोनोपोलिस्टिक मतलब कि जो बायर और सेलर है ना, वो आपस में कुछ ऐसा कर लेते हैं ना कि इफ यू बाय फ्रॉम अस दिस प्रोडक्ट फॉर ए लॉन्ग रन और सम क्वांटिटी पर मंथ और दिस मच इन ए ईयर, देन वी विल हैव द प्राइस डिफरेंट प्राइसिंग फॉर यू. सो अगर कोई बहुत बल्क में ले रहा हो या हमारे लिए काफ़ी लंबे दौर का वो हमारा कस्टमर है, तो उनके लिए आप प्राइस कुछ अलग रख सकते हो. सेलर बायर आपस में एग्रीमेंट कर लेते हैं. तो दैट इज आल्सो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. अंडर ओलिगोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या है कि कुछ सेलर क्या करते हैं, कुछ ही सेलर हैं और वो डोमिनेट करते हैं मार्केट में, तो आपस में वो अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं. दे विल हैव अंडरस्टैंडिंग दैट द शुड नॉट फिक्स द प्राइस बिलो दिस लेवल, so that pricing will be there, either you buy from me or from the competitor. Under pure monopoly, only one supplier is there. Earlier it used to have, government was only supplying. Private companies were not allowed, like HMT watch. But slowly it was open for all. So when there is monopoly, the seller can keep the price, very high price also. Cycle-based pricing. Pricing commodities according to the cyclical changes in the economic events over time is called a cyclical price. During economic recession, the price is brought down, whereas in boom condition, it is at the peak. Cyclical economic condition हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, कभी बहुत अच्छा होता है, कभी बहुत बुरा होता है, तो different situation में different pricing आप रखते हो, that is cycle based pricing. Promotional pricing. So new product pricing we already discussed, skimming or penetration. Product mix pricing, making product line pricing low, average, high. Optional, that is giving extra features in the same price by product bundling, premium pricing. You can have some, suppose more than one product, and you can offer the customer in a bundle of all the products. कुछ फास्ट मूविंग गुड्स हैं आपके, कुछ स्लो मूविंग गुड्स हैं. क्या करते हो, आपने उसका एक बंडल बना दिया और एक अट्रैक्टिव प्राइस बना दिया, तो उससे आपका क्या फायदा हुआ, स्लो मूविंग आइटम भी निकल गया और कस्टमर को फायदा हुआ कि ओवरऑल उन्हें कम पैसे में ज़्यादा चीज मिल गया. या फिर आपका कोई नया मॉडल आया, कोई नई गाड़ी आई, नया प्रोडक्ट आया जिसमें फीचर्स ज़्यादा हैं, बट यू कैन ऑफर इन द ओल्ड प्राइसिंग. So that is product mixing pricing. Price discount and rebates. This already is clear that whatever you are offering, discounts. Sometimes discounts are offered to the customer directly through media, through newspaper, to TV channels. Sometimes it is offered to the intermediaries, middlemen. There's dealers, wholesalers, distributors, retailers, and all. Psychological pricing, perfumes, premium cars, odd even pricing, bundling. This is psychological. आपको लगता है
कि हम परफ्यूम सस्ते वाला परफ्यूम ना खरीदें, हाई कॉस्ट परफ्यूम चाहिए, प्रीमियम आइटम चाहिए, प्रीमियम कार चाहिए, और कभी कभी हमें ऑड नंबर चाहिए, इवन नंबर चाहिए, ऐसा कुछ प्राइसिंग में चाहिए. So for that also you are keeping price. Bundling, I just now I explained you, bundle of price, the customer feel that I have got extra thing, so that is psychological pricing. Promotional pricing, complementary pricing, loss leader strategy, low interest financing. Complementary pricing मतलब अगर आप ये खरीद रहे हो तो दूसरा चीज आपको फ्री मिलेगा या लो कॉस्ट पे मिलेगा, या आपका सेल डाउन हो रहा है, then also you can offer some price, or you can give some extra benefits. Then you can also offer finance. Suppose your product is having high cost and the customer cannot pay at a time the whole price, he or she may need the loan finance, the low interest that you have tie up with the financer, so that is low interest financing. That is also promotional pricing. Geographical pricing, penetration strategy in one market and premium pricing in another market. जहाँ पे आपका प्रोडक्ट अच्छा बिक रहा है वहाँ पे आपने तो प्रीमियम प्राइसिंग रखा है, लेकिन जहाँ पे आपका प्रोडक्ट नहीं बिक पा रहा है, डिफरेंट एरिया है, तो वहाँ पे आप पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी लगाते हो, लो कॉस्ट करते हो, लो प्राइस करते हो. डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग, सेल्स प्रोडक्ट्स एट 2 or more prices based on the volume of sales है. आप उसको वॉल्यूम के अनुसार भी प्राइस को घटा सकते हो. अगर ज्यादा वॉल्यूम है तो प्राइसिंग आपने कम कर दिया, कस्टमर के पोटेंशियल पे आप इसको डिफरेंट प्राइसिंग कर सकते. थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस. यू हैव लर्नड प्राइसिंग स्ट्रेटजी टुडे. आई होप दैट यू मस्ट हैव लाइक्ड इट. मैंने पूरी कोशिश की है समझाने की. अगर आपको ये समझ में नहीं आया हो या कहीं कुछ डाउट लग रहा हो, प्लीज राइट इट in the message box. Thanks a lot. Again, I will come with another topic. Thank you.